Good morning, students. Now, today we are going to start chapter 9 Financial Management. Okay, now in this chapter, first of all, let us understand what is the meaning of financial management is. So, basically, financial management means when a company finances its capital by the way of issuing shares or debentures in the market, they arrange some money. Some money comes to them by selling the shares or debenture. After that, using that money in the company and managing those funds in the company, entire process is called as financial management. Okay. Now let us read it. So financial management is concerned with the efficient acquisition and allocation of the funds. So as I told you, acquisition means you are trying to get the money by the mode of issuing the shares. Then allocation of funds, that how are you going to use that fund in your company. Okay. Now, in other words, financial management is concerned with the flow of funds and involves decisions related to the procurement of funds, investment of fund in the long term and short term assets, and distribution of earnings to the owners. So basically, when the funds come inside the company, what happens? We will be using that fund in purchase of some machinery, maybe, which is called as investment decisions. Okay, then some part of that earning which will be earned, because in future what will happen, some money will come as well by daily transaction of the company. When the goods are being sold, some money will come. So that liquidity or the currency or money which is coming to you, you can manage your day-to-day business activities. So that is called as working capital. If you talk about the amount which is coming in form of profit, some share has to be given to the shareholders, which is called as dividend. Okay, so that is called as dividend decisions. Okay, so all different types of decision making are being done here in financial management. So, in simple word, we can say that financial management refers to the efficient acquisition of the fund, efficient utilization of the fund, and effective distribution and disposal of surplus for the smooth working of the company. So, how you're going to arrange, then how you're going to use that fund in the company, and how you're going to distribute that money in terms of dividend to the shareholders. So, this is the meaning of financial decision, and this is how we manage the money in the company. Okay, now what are the objectives of financial management? So, the main objective here, let us read from here. The main and the foremost objective of financial management is to maximize the wealth of the equity shareholder. The first objective is maximizing the wealth of the equity shareholders. Then the financial manager in the company makes decision for the owners. Okay, the shareholders of the firms means whoever is the shareholder means that person who has contributed some capital in the company. So regarding him also, the finance manager will have to make decisions, like they will have to give some dividend to that person who is a shareholder of the company. He must take some decisions, such decisions which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders, and shareholders gain only when the price of their share increases in the market. So the company will have to use the funds in such a way that they maximize the wealth of the shareholder. Means shareholder ने जो शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू बाजार में मार्केट में कब बढ़ेगी, जब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी. तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू यूज दैट फंड प्रॉपरली इन योर कंपनी. Okay, now, so financial decision which result in the increase in the value of the share is considered efficient decision. So when your company's share is increasing, its market value is increasing, उसका market value बढ़ रहा है शेयर का, तो आप जो भी डिसीजन मेकिंग आप कंपनी के अंदर कर रहे हो उसकी वजह से ही बढ़ रहा है. ओके, इट इज़ अ रीज़न, बिकॉज जो भी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन ऐसे ही नहीं आ जाते. It has to be some effective decision making, because of which there will be increase in the share prices in the stock markets. Now, on the other hand, the financial decision brings the fall in the value of equity if share is considered a poor decision. So, in a company, if you are taking poor decisions, so what happens? The market value of the equity share will come down. आपकी market value कम हो जाएगी, आपके शेयर की कम हो जाएगी अगर गलत डिसीजन मेकिंग अपन कर रहे हैं. ठीक है. अब गलत डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, जैसे कि हमने एसेट परचेज किया कंपनी का और हमने बहुत ज़्यादा ही पैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए और प्रोडक्शन कैपेसिटी हम उतना यूज़ नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फंडिंग हमने किस में कर दिए,
हमने मशीनरी में यानी कि फिक्स एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है बट स्टिल द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ वेरी लेस क्वांटिटीज, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये सेंस नहीं बनता। आफ्टर इन्वेस्टिंग सच अ बिग अमाउंट अपॉन द मशीनरी एंड देन यू आर थिंकिंग कि मैं उस कैपेसिटी पे जाके काम क्यों करूँ, अनयूटिलाइजेशन क्यों करना है, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी मशीनरी की ज़रूरत है जिस पे आप काम करोगे, यू शुड परचेज दैट amount of machinery only. Now, the objective of maximization of the wealth of the equity shareholder automatically fulfills many other objectives. वैसे तो यहाँ पर जब इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हो तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। जो मोटिव है ये देखो क्या होता है सिंपली, कि जो वेल्थ रहती है, जो पैसा इसने लगाया शेयर होल्डर ने, उसका पैसा बढ़े, उसका इंक्रीमेंट हो उसके पैसे का, तो वो खुश होगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेटली मोटिव भी ये रहता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपकी कंपनी का, तो बाजार में शेयर मार्केट में उसके प्राइजेस शेयर के ज़्यादा होंगे। ओके, व्हेन मोर प्रॉफिट विल कम टू द कंपनी, डेफिनेटली सब आपकी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहेंगे, डिमांड हाई रहेगी, आपके कंपनी के शेयर प्राइस हाई हो जाएगी, उसकी ज़्यादा पे ट्रेड करने लगेंगे। ओके, सो as equity shareholders get the share from the residue income only, they are given a dividend only. So what the shareholders get from as their income, उनको इनकम के रूप में क्या मिलता है, सिर्फ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एक प्रॉफिट जो होता है कंपनी को, उसका एक हिस्सा उनको मिलता है, पार्ट मिलता है, ठीक है। नाउ so here this equity shareholders get profit only in form of dividend। ये जो डिविडेंड इनको मिल रहा है, ये कब मिलता है, आफ्टर द क्लेम्स लाइक सप्लायर, एम्प्लॉय, लेंडर्स, जिसने पैसा दिया है, क्रेडिटर्स जो आपसे पैसा मांगते हैं, इन सबको पेमेंट होता है। उसके बाद सबके एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो इसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट, वो इनमें से कुछ पार्ट उसका एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, so suppose the company is having 100 crore of profits, and out of that, this is gross profit, after taking out the expenditure 50 crore is left. Okay, now from that 50 crore, company decided to distribute 5 crores among the shareholders, so this is called as dividend। ओके, तो ऐसा नहीं कि हर एक शेयर होल्डर को 5 करोड़ मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स कि अगर फेस वैल्यू शेयर की जो भी है लाइक 10 रुपीज़ है, तो कंपनी ने बोला 10% हम डिविडेंड देंगे, तो उसका मतलब क्या है, 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है उसका 10% है, मतलब कि 10 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 1 रुपीज़। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 1 रुपये मिलेगा उस पर एज अ डिविडेंड। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 रुपीज़ मिलेगा। इट इज़ लाइक दैट, इस तरह से डिविडेंड मिलते हैं। ओके, सो now read from here. The objective of increase in the value of equity share does not mean the finance manager should involve in manipulative practices। अब यहाँ पर what they are trying to say कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर्स कुछ गलत करे, मैनिपुलेशन करे एक्टिविटीज़ में, टू ब्रिंग द राइज इन द प्राइस, प्राइजेस को बढ़ाने के लिए कुछ मैनिपुलेशंस किए जाएँ, गलत तरीके से बढ़ाई जाएँ, तो ऐसा नहीं करना है। The price rise in the price must come with the growth of the firm. So there should be growth in the firm, which increase in profit of the firm with satisfaction of all the parties associated with the company। तो यहाँ पर कुछ गलत तरीके से प्रॉफिट नहीं बनाना है कंपनी को, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से आप दिखा रहे हो, जैसे कि कुछ करके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सत्यम, आज की तारीख में सत्यम कंपनी का नाम खत्म हो चुका है, बट सत्यम कंपनी जो थी उसकी बैलेंस शीट पे अराउंड 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया था। तो उसकी बहुत डिमांड थी मार्केट में, इवन वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बाहर के अब्रॉड के जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी लिस्टेड था वो शेयर। अब क्या हुआ, वहाँ पर जब लोगों को पता चला कि बाउंस हो गया इनका चेक, तो वहाँ पे बैलेंस शीट पे दिख रहा था 500 करोड़। उसकी वजह से डिमांड भी बहुत थी उस शेयर की मार्केट में कि बहुत बढ़िया कंपनी है, इट इज़ वेरी एक्सलेंट कंपनी, और हर कोई डिमांड कर रहा था उसका शेयर। अब हुआ क्या, जैसे ही पता चला चेक बाउंस हो गया, तो उनको पता चला कि ये चीज़, ऐसा कुछ पैसा तो है ही नहीं इनके पास में, तो ये मैनिपुलेशन किया गया था बैलेंस शीट में। तो ऐसा कुछ करके शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके ऐसा नहीं दिखाना है, सिर्फ फिगर्स में खेल रहे हो बैलेंस शीट पे, बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, शेयर होल्डर के साथ में धोखा नहीं करना है। तो दैट शुड नॉट बी डन। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स यार, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, ठीक है, थोड़ी लिक्विडिटी भी रखनी है। लिक्विडिटी मतलब कैश में होना चाहिए, थोड़ा पैसा मैनेज करना पड़ता है डे टू डे ट्रांजेक्शन, टू दैट्स वाई लिक्विडिटी इज नेसेसरी। देन प्रॉफिट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इज देयर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है
क्योंकि देखो प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको फंड का करना है, क्योंकि कंपनी में पैसा ला के आपको बैठना नहीं है, उसका प्रॉपर यूज़ करना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, कितना पे करना है, किसको कितना देना है, डिविडेंड किसको देने, शेयर होल्डर को, ये सब मैनेजमेंट पैसे का जो आप करोगे, इसको बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। फंड आपका पूरी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब कुछ आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि वेस्टेज नहीं होना देना है रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं करना है कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। देन मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं बेसिकली जिन्होंने आपको पैसा दिया है, क्रेडिटर वो आपसे पैसा मांगते हैं एक्चुअली। तो उनके साथ में जो आपका कमिटमेंट है उसको मीट करना मीन्स आपको इतना प्रॉफिट लाना पड़ेगा कि आप आराम से अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर पाओ। यू हैव टू मेक द टाइमली पेमेंट डेफिनेटली टू द क्रेडिटर्स ना। तो दैट्स वाई क्रेडिटर को टाइम पे पैसा मिल जाएगा, तो वो लोग भी आपके साथ में डील करते रहेंगे। ओके, now we will take this case study at the last. Now the important part, the financial decisions. So basically कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं? तो तीन तरह के होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बारे में, कितना देंगे ये सोचना पड़ेगा। डिविडेंड कितना दें? 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, 100 करोड़ प्रॉफिट इज देयर, और आप सोचो कि उसमें से 5 करोड़ दे कि 10 करोड़ दे, तो दैट डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, तो हम उसको देखेंगे। देन फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस वो होते हैं जहाँ पर आप कंपनी का पैसा, कहीं से कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, आपने वो पैसा कहीं से अरेंज किया, जैसे कि शेयर इशू किए मार्केट में, और मे बी आपने डिबेंचर्स इशू किए मार्केट में, तो उसको लोग खरीदेंगे और उनसे पैसा आपकी कंपनी के पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इक्विटी शेयर इशू करोगे या आप डिबेंचर्स इशू करोगे, इक्विटी या डेप्ट, तो ये चीज़ अपन वहाँ पर देखेंगे कि कौन सा डिसीजन कंपनी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो फाइनेंस करोगे अगर इक्विटी से, इक्विटी के शेयर्स के थ्रू, तो ये जो दो तरीके के दिखते हैं, इक्विटी, इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के लिए अपन DEBT लिख लेते हैं, DEBT डेप्ट यानी कि डिबेंचर। अब ये डेप्ट में क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पे अपन ने लोन लिया, जैसे कि लोन भी एक तरह का डेप्ट ही है, कर्ज ही है, तो 10% आपको रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देते रहना पड़ेगा इस पे, और ये आप प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो आपको ये पैसा देना ही देना है। इक्विटी शेयर में ऐसा कंपल्शन नहीं है, इक्विटी शेयर में अगर लॉस होता है तो मे बी आप डिविडेंड नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो अधिकतर कंपनी क्या कोशिश करती है कि हम इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा जुटाएं कंपनी के लिए, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द फंडिंग। फंड्स कैसे लाएंगे? इक्विटी शेयर इशू करके, शेयर इशू करेंगे लोगों में कि आप शेयर खरीदो और हम आपको डिविडेंड्स देंगे उस पे। अब अगर लॉस होता है तो देयर इज नो नीड टू गिव द डिविडेंड, कंपनी तो यही बोलेगी कि भाई मेरा तो लॉस हो गया है, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे सकती हूँ। तो ये इक्विटी शेयर के केस में होता है। तो ज़्यादातर कंपनी क्या करती है? इक्विटी इशू करती है, ओके। क्योंकि आपका प्रॉफिट अगर बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, आप कभी ज़्यादा कभी कम प्रॉफिट, ऐसे फ्लक्चुएशंस है, अब इस तरह के फ्लक्चुएशंस आर देयर, सो यू मस्ट गो फॉर इक्विटी शेयर ओनली, because if you go for debt, so this 10% will be a compulsion, कंपलसरी पेमेंट विच यू विल हैव टू मेक इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। घाटा भी हो रहा है तभी देना पड़ेगा, तो कोशिश ये करनी चाहिए। नाउ आफ्टर दिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? पैसा कहाँ पर लगेगा? पैसा आ गया तो आप इन्वेस्ट कहाँ पर करोगे? फिक्स एसेट में करोगे। देखो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, एक तो फिक्स एसेट्स में होता है, ठीक है, और कहाँ होता है? फिक्स एसेट के बाद में होता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और स्टॉक्स, रॉ मटेरियल वगैरह उसमें भी इन्वेस्ट होता है, फिक्स एसेट में भी होता है। ये दो चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसी से प्रोडक्शन करेंगे, मशीनरी रॉ मटेरियल से ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है, पैसा इसी से आएगा, तो ये करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कितना करना है? अब बहुत महंगी फिक्स एसेट खरीद के रख लिए और उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, दिस इज़ रॉन्ग। इन्वेंट्री ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी करके रख ली हाई प्राइजेस पे, दैट इज़ रॉन्ग। आपका फंड का गलत यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो? रॉ मटेरियल आपको 10 रुपये पे मिल रहा था, सस्ता था, लेकिन आपने किसी से 20 रुपये पे खरीद लिया, मार्केट में रिसर्च ही नहीं किया, तो दैट इज़ रॉन्ग, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। अभी इसका फर्स्ट अपन चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? सो दिस डिसीजन रिलेट टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। So firm has many options to invest in the fund, but the firm has to select the most appropriate investment which bring the maximum benefit. तो यहाँ पे कंपनी कौन सा इन्वेस्टमेंट चुनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है कंपनी को? फॉर द फर्म, डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो डेफिनेटली यू आर
saying here where to invest this fixed capital. Where to invest fixed capital. Now what is fixed capital? That money which is spent on buying the fixed asset like machinery, that amount which is invested in purchase of fixed asset, it is called as fixed capital. जिससे आपने फिक्स्ड मशीनरी या फिर ऐसा कुछ फिक्स एसेट खरीदा है, लैंड बिल्डिंग, तो ये फिक्स कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अब ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके तो मशीनरी देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके पास प्रोजेक्ट हो जिसमें आप पैसा लगा के उससे काफ़ी तेज़ी से, जैसे कि कुछ मशीनरी है, दो टाइप की मशीनरी है। एक से प्रोडक्शन इतना तेज होता है और उससे आप जल्दी पैसा अपना रिकवर कर लोगे, जैसे कि 10 करोड़ लगाए हमने, तो मशीनरी मेरी हेल्प करती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके और उसको पैसे को मैं जल्दी से मार्केट से रिकवर भी कर पाऊँ। तो ये जो चीज़ है, जो रिकवरी है, जिसमें ज़्यादा तेज़ी से मैं पैसा रिकवर कर सकता हूँ, और एक मशीनरी जिसमें मैं इतने जल्दी पैसा रिकवर नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक मशीन स्लो है थोड़ी, एक मशीन थोड़ी फास्ट है, My एक dear में। teachers, please pay attention. So here that is why it is mentioned here, the firm spends its funds in acquiring the fixed assets as well as current assets. So when decision regarding fixed assets is taken, it is also called as capital budgeting decisions. तो जब फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पैसा करंट एसेट में भी लगता है, उसको भी परचेज किया जाता है, लाइक रॉ मटेरियल्स। सो capital budgeting is basically a kind of thing in which wherein we are going to discuss about this purchase of fixed assets, और कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, वो चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर बी विल बी इन्वेस्टिंग आवर कैपिटल, हमारा पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मशीनरी ए हो चाहे बी हो, तो जिसमें भी आप परचेज करना चाहते हैं, तो वी मस्ट इंश्योर कि किससे हमको जल्दी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। इन एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में क्या होता है देखो, कि जो भी पैसा आपने लगाया, लाइक आपने 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया, सो इट शुड टेक मिनिमम टाइम टू रिकवर दैट अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड। एंड डेफिनेटली जिसमें जल्दी रिकवरी होती है हमारे इन्वेस्टमेंट की, लाइक 10 करोड़ हमको 5 साल में मिल जाए इंस्टेड ऑफ 7 ईयर्स, सो डेफिनेटली जो 5 ईयर में जो प्रोजेक्ट हमको दे रहा है, जल्दी रिटर्न करके दे रहा है, तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कोई भी मशीनरी हो सकती है। Okay, so that is the kind of thing which we are going to look here in investment decisions. Now what is the importance of this capital budgeting or investment decisions? The first one is long term growth. What is long term growth? See, capital budgeting decisions affect the long term growth of the company, as fund invested in the long term asset bring return in the future, and future prospect and growth of the company depend upon the decisions only. So what happens here, whenever taking a capital budgeting decision, we must ensure that all the money is going to come in future. जब भी आप कोई मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मशीनरी प्रोडक्शन होगा, सेल्स होंगे, प्रोडक्ट, फिर पैसा आएगा, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई टू एसेस, पता करना पड़ता है थ्रू द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और उसको पता करने में हमको ये पता चलता है कि कितनी जल्दी हमारा पैसा वापस आ जाएगा हमारे पास में, मीन्स जो भी हमने पैसा लगाया, अमाउंट लगाया है कंपनी में, वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट होंगे वो रियल प्रॉफिट्स होंगे आपके, कॉस्ट निकलनी चाहिए पहले आपकी। तो दैट इज़ द थिंग, तो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेकंड इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे पैसा जो लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ओके। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, दीज आर द फिक्स एसेट वेर इन लॉट ऑफ मनी विल बी गोइंग एज इन्वेस्टमेंट। So it involves a huge investment of fund. If wrong proposal is selected, then it will result in the wastage of huge amount of funds. तो अगर wrong project आप select कर लेते हो, in any case, suppose हमने गलत मशीनरी select कर ली है, now it is taking a lot of time to recover the investment. तो इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ही नहीं निकल रही है, और प्रॉफिट्स तो आना बहुत लेट हो गया, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग, गलत डिसीजन हो गया, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग ज़्यादातर कंपनियां यूज़ करती हैं और पता करती हैं, एसेस करती है फ्यूचर में कितना टाइम में पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा, किस प्रोजेक्ट को हम चुनें। नाउ द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है हमेशा बिजनेस में, हमेशा फ्यूचर में रिस्क है, ऑलवेज देयर विल बी रिस्क, ओके। तो कैपिटल बजटिंग उसमें भी हेल्प करता है। सो द फिक्स कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स and also big risk, because the returns come in long run and company has to bear the risk for this long time period. So इस रिस्क को बियर करने के लिए भी हम कैपिटल बजटिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व रहती है, तो उसको हम चेकआउट करते हैं थ्रू द कैपिटल बजटिंग, ओके। नाउ
आफ्टर दिस इरिवर्सिबल डिसीजंस, इरिवर्सिबल ऐसा डिसीजन है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज कैपिटल बजटिंग में अपन कर क्या रहे हैं बात, सिंपली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट परचेज ऑफ सम मशीनरी और फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड ऑल दिस एसेट्स आर ऑफ वेरी हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसे के आते हैं। तो ये जो रुपए आपके ज़्यादा लगेंगे एक बार इन्वेस्ट हो गए तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सही फॉर एग्जांपल इफ़ यू invested 100 crores of rupee for purchasing some machinery and suppose somebody is saying कि इससे भी बेहतर मशीनरी हमारे पास है, अवेलेबल है मार्केट में, हम इसको बेच के वो ले लेते हैं, तो क्या आप उस मशीनरी को बेच दोगे आधे कीमत में, हाफ ऑफ द प्राइस? कैन यू सेल? नो, हम नो इज द आंसर, हम ऐसा नहीं करेंगे, उससे हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई हम कैपिटल बजटिंग प्लान करते हैं, पहले पता करने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने टाइम में पैसा आ जाएगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग विच इज़ द इम्पोर्टेंस हियर, विच इज़ इट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ डिसीजन इज इरिवर्सिबल, इसको रिवर्स आप वापस नहीं कर सकते। Then factors affecting the investment criteria और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो मीन्स मनी विल कम टू योर कंपनी। ओके, कैश आएगा, आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, पैसा आएगा, आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी से इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि मशीनरी प्रोडक्शन करेगी, वो गुड्स मार्केट में सेल आउट होंगे, पैसा मार्केट से आएगा आपके पास। तो ये जो चीज़ है कैश फ्लो तो डिपेंड करता है पहला फैक्टर इसके ऊपर। सो वेन एवर ए कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड, ओके, so it proposal is expect some regular amount of cash flow, एक regular cash flow दिखना चाहिए to meet day to day expenses or requirements. So amount of cash flow, an investment proposal will be able to generate most of the assets property without investing in the proposals. ओके, नो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली जो भी पैसा हम कैश फ्लो में लगा रहे हैं वो हमारे पास जल्दी जल्दी आ जाए वापस से। तो कैश फ्लो जितना तेज़ आएगा, सिंपल थिंग इज़ दैट, कैश फ्लो जितना तेज़ आएगा उतनी जल्दी हमारा वो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो भी हम उसमें ये चेक करते हैं कि कैश जनरेशन कैसा हो रहा है उसमें। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स, क्योंकि अगर कैश जनरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसे कि उस मशीनरी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे हमारा कैश फ्लो जल्दी आएगा, मीन्स जल्दी मशीनरी प्रोडक्शन कर रही है, जल्दी हम मार्केट में सेल कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स और पैसा बहुत जल्दी रिकवर होता है। और दूसरी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है थोड़ी स्लो है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द फंड इट इज़ हैविंग, जितना भी पैसा उनके पास है कि कौन सा प्रोजेक्ट के लिए जाती है। ओके, सेकंड इज आरओआई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना रिटर्न आप कमा रहे हो। ओके, सपोज आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आप बोल रहे हो उसमें मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर अर्निंग 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। So most important criteria is to decide the investment proposal's rate of return. It will be able to bring back the company in the form of income. For example, if the project is to bringing 10% of return, the project B is bringing 15%, then we should take the project B. Now here they are talking about the two project A and project B. So in project A there is 10% return and in the project B there is 15%. तो आप कौन सा प्रोजेक्ट लोगे? डेफिनेटली जिस पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज़्यादा कमा के दे रहा है प्रोजेक्ट 15% है, तो आप वही प्रोजेक्ट लोगे। तो इस पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट फैक्टर। हम देखते हैं कि हमारे पैसे पे कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अर्निंग करके दे रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। Okay, so investment criteria, what is this? See, along with the return and risk cash flow, there are various other criteria which help in selecting the investment proposals, such as availability of labor, technology, input, machinery, etc. So this is another important factor, because suppose if you've taken a decision regarding the investment in some kind of machinery, and after that you're realizing that there is no trained labor for that particular technology, then you, it is a kind of wastage, that investment will be a kind of wastage, because आपके पास अगर लेबर ही नहीं है, एक नई तरह की मशीनरी आपने खरीद ली, बट देर इज लेस अवेबिलिटी ऑफ लेबर एंड इनपुट्स फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर इनपुट भी आपके यहाँ नहीं मिल रहे तो मशीनरी आपकी कंपनी में आके रख गया है, अब वो किसी काम की नहीं, बिकॉज आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में ये चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है बिफोर बाइंग। सो दिस इज ऑल्सो मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक कि वहाँ पर लेबर अवेबिलिटी होनी चाहिए, इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम उसको चेक करते हैं। नाउ the decision to invest in the particular project involves number of calculations regarding the amount of investment, like interest rate, cash flow and rate of return. Now these three things, interest rate, cash flow
एंड रेट ऑफ रिटर्न, पैसा कितना आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आप कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे, और इंटरेस्ट रेट, मतलब कि इंटरेस्ट रेट इन द सेंस कि आप जब लोन लोगे उसके लिए तो आपको कितना ब्याज वहाँ पे पे करना पड़ रहा है बैंक को, तो दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो ये फैक्टर्स भी हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता है, ये सब फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द काइंड ऑफ क्राइटेरिया विच इज़ बीन सेट। ओके, कि जब भी आप प्लान करते हो तो हम कोशिश करते हैं कि लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हम कम से कम बैंक मिल सके, हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज रहते हैं। Now, after this, what is financing decisions? तो बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है जो कौन करता है। देखो ये सारे डिसीजंस किसके काम है, फाइनेंस मैनेजर के। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर करता है, ठीक है। इट हैज़ टू डिसाइड द सोर्स ऑफ द फाइनेंस। सोर्स ऑफ द फाइनेंस का मतलब ये है कि जब आप कोशिश करोगे कंपनी के अंदर पैसे की ज़रूरत है तो आप कैसे लाओगे फंड्स को, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दैट मनी टू द कंपनी। सिंपली मे बी आप बोलोगे सर यू कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। तो शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है, बाय टेकिंग द लोन्स एंड एडवांसेस। बाय टेकिंग लोन्स मीन्स आपको डेप्ट चाहिए, तो डेप्ट चाहिए कहाँ से मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है, बट है तो डेप्ट ही, कर्जा ही है। इट इज़ ऑल्सो लाइक डिबेंचर। ओके, आपको पे करना है अलॉन्ग विद द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको एनी हाउ पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर ऑलवेज कम विथ फिक्स चार्जेस कि आपको देना ही है, डजेंट मैटर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉसेस। Now, deciding how much to raise, फ्रॉम विच सोर्स इज द कंसर्न ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो यहाँ पे हाउ मच टू रेज, कितना पैसा रेज करना है, मतलब कितने पैसे की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट थिंग। देन विच सोर्स इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल डिसीजंस, कि कौन से सोर्स से लाओगे, मतलब इशू करोगे शेयर या डिबेंचर इशू करोगे, लोन कैसे करोगे। ओके, इन योर सिलेबस इट इज ओनली टू, ओनर्स फंड लिखा है और बोरोड फंड लिखा है, प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू भी आता है मनी, ओके, एडीआर्स के थ्रू भी आता है, बट दैट इज अनदर थिंग, दिस इज योर ग्रेजुएशन पार्ट, आपको अभी नहीं करना है। आपकी बुक में सिर्फ ओनर्स फंड की बात कर रहे हैं और बोरोड फंड की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स आर आल्सो काइंड ऑफ ओनर्स फंड ओनली, बट उसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे। ओनर्स फंड और बोरोड फंड, इक्विटी यानी ओनर्स फंड, एंड बोरोड फंड मतलब कि डेप्ट, कर्ज का पैसा बोरो किया हुआ किसी और से लिया हुआ। ओके, now, share capital and retained earning are owners fund and debentures, loans, bonds constitute borrowers fund. तो रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा जैसे कि प्रॉफिट है। ओके, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर में, और जो पैसा बचा था उसको कंपनी ने अपने पास रख लिया, उसको बोलते हैं हमने अर्निंग को रिटेन कर लिया, ठीक है, बचा के अपने पास रख लिया। तो पैसा किसका रहता है, मालिकों का ही है, ओनर्स फंड है ना, उनका ही रहता है पैसा। एक पैसा तो ये होता है रिटेन अर्निंग वाला, और इक्विटी शेयर से जो पैसा आ रहा है वो भी उनका ही रहता है, ठीक है। तो जो पैसा आपने दिया वो तो है ही सही, साथ ही साथ जो कंपनी के पास में जो रिटेन अर्निंग है, जो बचा हुआ प्रॉफिट हो रहा है वो भी कंपनी के ओनर्स का ही रहता है, मीन्स ओनर फंड रहता है। सो कंपनी कैन यूज दिस रिटेन्ड अर्निंग फॉर डूइंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़, वो उसको यूज़ कर सकती है। देन डेप्ट का पैसा कौन सा होता है, लोन के थ्रू लाओ या बॉन्ड्स इशू करके लाओ, डिबेंचर्स, बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह वो इशू करती है, ओके। प्राइवेट फर्म्स कंपनियां डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, और लोन बैंक से, बट ये सब एक तरह के डेप्ट, ये कर्ज है जो कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यू विल हैव टू पे सच काइंड ऑफ लाइबिलिटी। Now, the main concern of the finance manager is to decide how much to raise from the owner's fund and how much to raise from the borrowed fund. This is the important thing here. आपको फाइनेंस चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कितना चाहते हो इक्विटी से शेयर से इशू करना पैसा, और कितना आप बोरोड फंड से इशू करना चाहते हो। लाइक 50-50 का रेशियो में भी कर सकते हैं। सपोज कंपनी नीड्स 100 करोड़ और रुपीज एज फंडिंग, इतना उनको फाइनेंस रेज करना है 100 करोड़ का। So maybe you can decide that 50 crore we will bring from equity and 50 crore we will try to bring from borrowed fund by the help of loan from bank or maybe by issuing डिबेंचर। तो डिबेंचर और लोन लेकर 50% हम लेंगे जो कि कर्ज का पैसा रहेगा। तो 100 करोड़ पे जो 50% है, मतलब कि 50 करोड़ है, उस पर फिक्स्ड लाइबिलिटी बनेगी। जैसे कि 10% अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना है तो उस 50% पनी पे चुकाना पड़ेगा। सेकंड जो इधर इक्विटी पे, उस पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं बनता है हम दें या नहीं दें डिविडेंड, इट इज़ अप टू अस। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर इशू कर दिए या सिर्फ बॉन्ड इशू कर दिए, ऐसा नहीं है। कंपनी चाहे तो कर सकती है, बट इट इज़ ऑलवेज हैव टू गुड टू हैव डेप्ट इन द कंपनी। थोड़ा कर्ज से अच्छा रहता है। लेटर ऑन आई विल टेल यू कि कर्ज क्यों होना चाहिए कंपनी में, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हो, मतलब फाइनेंस रेज कर रहे हो, तो वाई इट इज़ गुड टू इन्वॉल्व सम डेप्ट इन द कंपनी। डेप्ट से होता क्या है, आई विल लेटर टेल यू अबाउट दिस। So
द मेन कंसर्न ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर फंड एंड कितना बोरोड से होगा, कितना ओनर्स फंड से आएगा, ये चीज़ अपने को देखनी है ना. While taking the decision, the finance manager compare the advantage and disadvantage of different source of finance. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, इक्विटी में बोरोड पे क्या बनता है, फिक्स लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको चुकाना ही है, प्रॉफिट हो या लॉस हो चुकानी है. इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं है, तो उसका प्रॉस हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, और इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट भी दिखता है बोरोड फंड का एक. सो द बोरोड फंड हैव टू बी पेड बैक एंड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क. Whereas its owner fund, there is a fixed commitment of the repayment. There is no risk involved. तो ओनर फंड में जैसे मैंने बताया आपको कोई रिस्क नहीं होती, चुकाओ उस पैसे को या फिर डिविडेंड दो या ना दो, इट डजेंट मैटर. बट इन केस ऑफ डेप्ट देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब ये रिस्क कंपनी के ऊपर है, ये रिस्क कि कंपनी को फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा. ओके वो पैसा आपको देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा उस पैसे को. तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क ऑन द कंपनी इफ यू आर गोइंग फॉर डेप्ट. अगर डेप्ट इशू करके, डिबेंचर इशू करके पैसा ला रहे हो तो आपको फिर उस पैसे को चुकाना है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजंस. तो फर्स्ट, जब भी आप फाइनेंस करोगे थ्रू द इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, तो क्या होगा, फर्स्ट इज कॉस्ट. So cost of raising finance from various sources is different and finance manager always prepare the source of minimum cost. जब भी आप सोर्स रिव्यू आप करोगे तो उसकी कॉस्ट आएगी. लाइक दो बैंक्स हैं, अब वहाँ पे आप कैसे सिलेक्ट करोगे, एक बैंक आपको 8% पे लोन दे रहा है, एक 10% पे लोन दे रहा है. तो यहाँ पर यू हैव टू से दैट जो भी मिनिमम कॉस्ट है 8% पे जो बैंक दे रहा है हम उससे लेंगे. तो कॉस्ट यहाँ पे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि हम किससे लेंगे, जो भी हमको सस्ते में फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, जो भी बैंक हो हम उससे ले लेंगे. ठीक है, तो कॉस्ट इज द मेजर थिंग हियर. देन रिस्क, रिस्क भी रहता है. देखो क्यों रिस्क है, देखो रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड. बोरोड फंड पे रिस्क क्यों रहता है, द थिंग इज दैट सिंपली बिकॉज यू विल हैव टू पे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इवन इफ यू आर हैविंग लॉस ऑल्सो. अगर आपको लॉस भी हुआ है कंपनी में, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी कंपनी लॉस में है, आई कैन नॉट गिव यू दिस इंटरेस्ट, बैंक आई कैन नॉट गिव यू दिस इंटरेस्ट. तो दिस इज रॉन्ग. So in the case of company, this is kind of risk upon the company. So it is always compared to the owner's fund security. Finance manager compare the risk with the cost involved and prefer security with moderate risk factor. So definitely a company, if it don't want to take any kind of risk, then definitely the company will go for equity, because debt always attracts a fixed kind of liability. आपको चुका के देना ही पड़ेगा. तो that is the kind of thing in which or factor risk, इट डिपेंड्स कि कंपनी क्या चाहती है, रिस्क उठाना चाहती है कि नहीं. अगर रिस्क उठाते हैं मतलब सीधा डेप्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि दैट यू कैन गो फॉर डेप्ट इफ़ यू वांट टू हैव सम रिस्क. बिकॉज वाई रिस्क इज दैट, बिकॉज फिक्स लाइबिलिटी बनती है बोरोड फंड के ऊपर. ओके, देन कैश फ्लो पोजिशन. what is the condition of the companies of the cash flows. Cash flow is what, whenever the products of the companies get sold in the market, the cash will come into the company. प्रोडक्ट बिकेंगे, पैसा कंपनी के पास आएगा. ओके, तो ये पोजीशन कैसी है, डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. सो बहुत सिंपल है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी हेल्प्स टू सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी. कैश फ्लो पोजीशन को देखकर अगर कंपनी के पास बहुत ही फिक्स कैश फ्लो आता है, लाइक मुझे पता है मेरी कंपनी के पास बहुत ही इजीली हर मंथ 1 करोड़ रुपए इजीली आ जाते हैं, हर मंथ में 1 करोड़ इजीली आ जाते हैं. तो मैं डेप्ट के लिए जा सकता हूँ, आई कैन गो फॉर लोन. बिकॉज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. बट अगर मेरी कंपनी में कैश फ्लो की सिचुएशन कुछ ऐसी है जो कि फ्लक्चुएट हो रही है, समटाइम इट इज़ प्रॉफिट, समटाइम इट इज़ लॉसेस, नॉट फिक्स, तो इस तरह की कंपनी में मैं डेप्ट या फिर लोन वोन बैंक का नहीं ले सकता हूँ. आई डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इशू शेयर्स, आई विल इशू शेयर्स, so that maybe if in case of loss I will not pay the dividends. So it is always good to go or arrange the finance to meet the requirement through issue of equity shares. Now next is control considerations. What is control considerations? See, when you issue lot of shares in the company, okay, suppose if in existing shareholder want to retain the complete control of the business, they prefer borrowed fund securities to raise further fund. On the other hand, if they don't mind to lose the control, they may go for the owner fund security. So what are they saying here? Simply, सो हियर इन कंट्रोल कंसिडरेशन सिंपल सा पॉइंट है. सी, अगर कंपनी के कुछ इश्यूज हैं, मतलब लाइक कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड सम इक्विटी शेयर्स इन द पास्ट. नाउ सपोज आज हमारी कंपनी के सारे इश्यूज, सारे से जो भी पैसा हमने अरेंज किया कंपनी में वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही आया है. अब क्या होगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं लाइक वी वर 1000 शेयर होल्डर्स, 1000 कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो जो भी डिविडेंड मिलता है मतलब इन लोगों को
1000 लोगों को जो भी डिविडेंड मिल रहा होगा, अगर कंपनी और इक्विटी शेयर इशू करती है, लाइक कंपनी ने सोचा कि 1000 और इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे, तो अब 1000 मोर शेयर होल्डर्स विल बी देयर इन द मार्केट। अब टोटल कितने शेयर होल्डर, टोटल 2000। तो पहले प्रॉफिट जब होता था तो 1000 लोगों में बंटता था, शेयर होल्डर्स में बंटता था। अब एक और 1000 हमने शेयर्स इशू कर दिए तो मार्केट में 1000 शेयर होल्डर और बढ़ गए। अब जब प्रॉफिट होगा तो 2000 शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ से इसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन हो गया, मतलब कि जो पहले इन लोगों को ज़्यादा ज़्यादा डिविडेंड मिलता था, आपको थोड़ा कम कम मिलेगा। तो जब ज़्यादा ज़्यादा इक्विटी शेयर्स के थ्रू आप इशू करोगे, मतलब इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करोगे कंपनी में, तो उससे इक्विटी डाइल्यूशन होता है। तो ये शेयर होल्डर अगर ऐसा नहीं चाहते कि हमारा जो डिविडेंड हो कम हो, ज़्यादा इशू करेंगे इक्विटी शेयर तो हमारा शेयर कम होगा, हमारा डिविडेंड कम होता जाएगा, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो फॉर डेप्ट। वो बोरोड फंड के लिए जाएंगे। वो क्या करेंगे कि बैंक से लोन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होता। ठीक है। देन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या चीज़ होती है, जब भी आप शेयर या डिवेंचर इशू करते हो तो यहाँ पर मार्केट में बैंक आपसे पैसा चार्ज करेंगे, ब्रोकर्स रहते हैं, एजेंट्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, ये सब आपसे पैसा चार्ज करेंगे। सो ऑल दिस आर इज नथिंग बट अ फ्लोटेशन कॉस्ट। आप लोगों में बेचोगे तो डायरेक्टली सेल नहीं होता है, यू विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज। ये सब जितने भी बीच में आ रहे हैं एजेंट्स वगैरह, ब्रोकर्स, इन सबको भी पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें जो पैसा लगता है, जो कॉस्ट आती है, उसी को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो डिपेंड करता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू आए या डिबेंचर्स के थ्रू आए। इक्विटी शेयर्स में डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो वो इशू करना थोड़ा महंगा रहेगा। अगर नहीं कंपनी कर सकती है, पॉसिबल नहीं है, तो द कंपनी शुड गो फॉर डिबेंचर्स। देन द सिक्स पॉइंट हियर, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन they must prefer owner's fund, because due to high fixed operation cost the company may be not be able to pay the interest on debt or security। अगर कंपनी के पास ऑलरेडी कर्जा बहुत है, मीन्स देर इज ऑलरेडी टू मच डेप्ट ऑन द हेड ऑफ द कंपनी, सो व्हाट दे विल डू, दे कैन नॉट और दे शुड नॉट गो फॉर एडिशनल डेप्ट। अगर ऑलरेडी कर्जा या लोन का पैसा बहुत है आपके कंपनी में, लाइक कंपनी के अंदर 100 करोड़ रुपये इन्वेस्टेड है, अब उस 100 करोड़ रुपीज़ जो अपन ने अरेंज किए थे उसमें से 80%, ये मान लो 80% हम लोन के थ्रू लाएं, मतलब 80 करोड़ का तो लोन ही है। इन सच ए केस आप सोचो कि अब मैं और पैसा अरेंज करना चाहता हूँ तो मैं और बोरोड कर सकता हूँ बैंक से, या फिर डिबेंचर इशू करता हूँ। तो ये तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ऑलरेडी कर्जा बहुत है, तो अब और डेप्ट इशू करना ही गलत है। पैसा चाहिए तो डोंट इशू दिस डिबेंचर्स और डोंट टेक लोन फ्रॉम द बैंक। वी विल ट्राई टू इशू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। तो फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर हो जाता है, कि अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि जो ऑलरेडी आप ऑपरेट करो बिजनेस को, तो फिक्स्ड amount of interest is regularly are paying, so that is the kind of problem, so you should go for equity share in this case. So the last point is द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, शेयर बाजार। शेयर बाजार में क्या होता है, शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। ओके। तो यहाँ पर कंसिडरेशन इज दैट इफ द कंडीशन द कैपिटल मार्केट इज गुड, सो अगर कैपिटल मार्केट अच्छा कर रहे, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। सो इफ द कंडीशन ऑफ द स्टॉक मार्केट इज गुड देन वी शुड इशू इक्विटी शेयर। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड केस स्टडी भी आती है, इन द केस स्टडी दे कैन आस्क that if the condition of the stock market is good, what security will you issue। तो हम शेयर्स इशू करेंगे। ओके, डेफिनेटली हम शेयर इशू करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन वर्स है तो मे बी पॉसिबल विल ट्राई टू इशू डिबेंचर्स और टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन ऑफ द कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो अ फैक्टर, कि हम कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं या फिर कौन सा डिबेंचर इशू कर रहे हैं या लोन लें। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। ओके, so that's all for today, we'll be moving with the other decision, we'll be completing in the next part of this chapter. Okay, this is a big chapter and it is also important one as when the knowledge is concerned. So let us continue in the next part. So thank you.